which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled all of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Thus then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Chapter 2, Christ our advocate and propitiation. First verse say, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate, that the Father, Jesus Christ the righteous, and he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him, ought himself also so to walk even as he walked. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment, which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness, even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have every one the wicked one. And ye have overcome the wicked one. And ye have overcome the wicked वन। हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की
पहली पत्री, पहला अध्याय, DSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। जीवन का वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ज्योति में चलना। 5 वचन से आगे, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ध्यान दीजिए इस बात पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यानी कि अगर कोई मसीह यीशु में है लेकिन वो परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को नहीं जी रहा है, ओके, तो उसके साथ आपकी सहभागिता नहीं रहती है। समझ में आया? चाहे वो मसीह है फिर भी उसके साथ आपकी सहभागिता नहीं बनती है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो हमारे अंदर का सहभागिता का सीक्रेट आप ध्यान रखिए। आपकी सहभागिता किसके साथ बनती है? जो यीशु के वचन के उजियाले को पसंद करके उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है, वो आपके माता है, वो आपके रिश्तेदार है। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है, हर मसीह, हर इंसान जो कुछ अच्छा काम कर देता है तो आपका सहभागी नहीं बनता है वो। ओके, केवल वही इंसान जो चौकसी रखते हुए अपने जीवन को सीधे परमेश्वर के प्रकाश में चलाता है, केवल वही इंसान आपको मायने रखता है और आप उसके लिए मायने रखते हो। समझा? और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। तो आपका रिश्ता तब भी सफल होता है जब उसमें यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करने के लिए मौजूद रहता है। ओके, तो आपकी सहभागिता जो आप बोलते हैं ना कि मेरा इससे बनता नहीं है, मेरा उससे चलता नहीं है, मेरा ये क्यों ऐसा है? क्योंकि आज्ञा पालन में कमी है। ओके, आज्ञा पालन में जिसकी कमी होगी, परमेश्वर का उजियाला जिसमें ज़्यादा है और दूसरे में अगर कम है, तो फिर वो अज्ञानता के कारण आपकी फेलोशिप खो देता है, आपके संगति को खो देता है। अगर आपके पास उजियाला कम है और दूसरों के पास उजियाला ज़्यादा है, प्रभु यीशु का आज्ञा पालन ज़्यादा है, तो वो आपके संगति को पसंद नहीं करेगा। ओके, आप उसके संगति को खो देंगे। समझ में आया? तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ये उजियाला आपको एक मन करके रखता है। जितना ओबीडियंस, जितना आज्ञा पालन दूसरे करते हैं यीशु मसीह का, उतना आप भी कर रहे हैं, और आप जितने आज्ञा पालन कर रहे हैं उतना अगर दूसरे भी कर रहे हैं, वही आपका साथ संगति मसीह के अंदर एक मन होकर रह सकता है। समझा? आप इसके लिए बोलते हैं ना, जो चोरी करता है वो चोरी वाले को ढूंढ लेता है और दोस्ती कर लेता है, जो व्यभिचार करता है वो व्यभिचारी वाले को ढूंढ लेता है और उसके दोस्त बन जाता है, जो पियक्कड़ रहता है वो पियक्कड़ वालों को ढूंढ लेता है और उसके दोस्त बन जाता है। ओके, तो आपके अंदर का लेवल कितना है आज्ञा पालन का, वही आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड भी उतने ही लेवल का आपको मिलेगा।
इससे ज़्यादा वाला लेवल का आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ओके, या इससे कम वाले लेवल को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये स्पिरिचुअल लेवल के अंदर की सहभागिता का रहस्य है, ओके। इसके लिए कुछ मसीह आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ मसीह आपको कड़वे लगने लगते हैं। उस आज्ञा पालन के स्तर आपके मिसमैचिंग हो रहते हैं इसकी वजह से, ओके। और यहाँ पर फिर आपके रिश्ते के अंदर जब आज्ञा पालन का स्तर पकड़ लिया, आपका फेलोशिप आपकी बन गई किसी के साथ, तो फिर उसके बीच में आपके मन को, आपके जीवन को, आपके सारे समय को शुद्ध रखने वाला पवित्र लहू काम करता है। हालेलुया। आपको ये रिलेशनशिप का सीक्रेट समझ में आना चाहिए, ओके। 8 वचन से आगे, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये उनके लिए लिखा है जो अभी तक मसीह में आए नहीं है, ओके। ये सुसमाचार है उनके लिए जिनको हम यीशु मसीह के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, ओके। जब हम यीशु मसीह के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तब हम ये 8 वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 वचन और 8 वचन और 9 वचन हम इस्तेमाल करके हमारा सुसमाचार का टॉपिक बनाकर लोगों के बीच में ला सकते हैं, ओके। 10 वचन, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अब जब अनबिलीवर्स है, ओके, अनबिलीवर्स पाप करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर में नहीं है। अनबिलीवर्स, अविश्वासी, गैर मसीह, वो पापी कहलाते हैं क्योंकि वह अभी तक पापों की माफ़ी प्राप्त नहीं किए हैं। तो जब कोई आपका वचन सुन लेता है और फिर भी अपने मन को हठीला बनाकर कहता है चलो चलो छोड़ दो, हम में कोई पाप है ही नहीं, अगर फिर भी वो आपको बदतमीजी के जवाब देकर कहता है छोड़ो कुछ नहीं है, ये सब पाप वेप कुछ नहीं है, ये तो जगत है, ये तो ऐसे ही रहता है, हम नहीं मानते कि हम पापी है, अगर कोई ऐसा आपको कहने लगा तो फिर वो क्या कर रहा है, वो वचन को झूठा ठहरा रहा है। यानी आप जो सुसमाचार 8 और 9 वचन उसको सुना रहे हैं उसके बारे में वो ठट्ठा उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है और वो साबित कर रहा है अपने अंदर से कि यह वचन झूठा है, ओके। वो दर्शा रहा है कि यह वचन झूठा है, तो उसके अंदर वचन है ही नहीं। समझ में आया? यानी कि उसके अंदर पवित्र आत्मा का काम हो नहीं रहा है, ओके। अगर किसी ने आपके 8 और 9 वचन को सुन के अपने आप को मान लिया, ठीक है भाई मैंने पाप किया, मुझे माफ़ करना है परमेश्वर ने और मुझे धर्मी बनना है, अगर किसी ने मान लिया तो यहाँ पे आपको ये बात मालूम पड़ना चाहिए कि इस जगह में हमारे लिए उस इंसान को दुआ करना और बचा लेना ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का काम चल रहा है, ओके। जिसके अंदर ये आत्मा का काम चल नहीं रहा है उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके अंदर आत्मा का काम नहीं है, इसकी वजह से वो अपने आप को पापी मानने में कठिन हृदय कर रहा है, अपने आप को पापी मानने में इनकार कर रहा है। हालेलुया। तो उसके अंदर पवित्र आत्मा का जरा भी काम नहीं हो रहा है, उसको बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा का टच अभी तक आया ही नहीं है, ओके। तो ये सीक्रेट, ये रहस्य हमको मालूम होना चाहिए। मसीह हमारा सहायक, आगे पढ़ेंगे हम। दूसरा अध्याय 1 वचन से 14 वचन तक। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो।
और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसमें हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। तो ये 3 वचन को ध्यान रखिए। ये 3 वचन आपको प्रूफ देगा। अगर इंसान ने मान लिया तो इसका मतलब क्या है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। ओके, तब तक वो मसीह नहीं बनता है जब तक वो आज्ञा पालन में उतर कर नहीं आता है। समझ में आया? तो आज्ञा पालन में उतर कर आने वाला इंसान ही सिर्फ ये प्रूफ देता है कि उसको पवित्र आत्मा ने छू लिया है। ओके, उसको पवित्र आत्मा ने वचन दे दिया है उसके अंदर रहने के लिए। ठीक है, तो तब तक हमको ये 2 अध्याय के पहले वचन और 2 वचन हमको गैर मसीहों को यही बात को हम प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और देखिए 4 वचन क्या लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। जब सुसमाचार आप सुनाते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है चलो हम उद्धार की प्रार्थना कर लेंगे, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन जब पानी का बपतिस्मा का समय आता है, आज्ञा पालन का समय आता है, तब वो कहते हैं नहीं ये तो नहीं हो सकता। ओके, या फिर कभी दान दशमांश देने का, मसीह होने के बाद में दान दशमांश देने का समय आता है, तब वो कहता है नहीं ये तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है? वो वहाँ पर भी मसीह नहीं होने का नतीजा मान लेता है। ओके, उसके अंदर वचन कमज़ोर पड़ जाता है, वह आज्ञा पालन में कमज़ोर पड़ जाता है। ओके, तो वह झूठा ठहर जाता है, उसके अंदर सच्चाई नहीं है। जिसके अंदर सच्चाई है वो पूर्ण रूप से सच्चाई को आज्ञा पालन करेगा, और जिसके अंदर सच्चाई नहीं है वो पीछे हटेगा, वो उन बातों को परेशानी समझेगा जो आज्ञा पालन की है। ओके, उसको अगर कहेंगे तो अब मसीह बन गया है तो अब पियक्कड़ होना बंद कर, व्यभिचार करना बंद कर, तो वो बोलेगा ये थोड़ी होता है, हम तो इस दुनिया के अंदर रहते हैं, ये तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आज्ञा पालन की घटी है उसके अंदर, वो मसीही अभी तक बना नहीं है। भले ही उसने पानी का बपतिस्मा लिया हो, भले ही उसने आज्ञा पालन थोड़ा सा कर लिया हो, लेकिन अभी तक वो मसीही नहीं है। मसीही वो है जो 100% आज्ञा पालन में उतर कर आता है। हालेलुया। अब इसके लिए ऐसे आधे अधूरे आज्ञा पालन किए हुए लोगों के लिए ये वचन कहता है कि अभी भी वो पाप में डूबे हुए हैं। समझ में आया? अभी भी वो अधर्म के कामों में, अशुद्ध कामों में डूबे हुए हैं। तो अगर आप ऐसी अवस्था में अटके पड़े हुए हैं जो थोड़ा बहुत आज्ञा पालन कर लिए और आधे अधूरे अब कुछ आज्ञा पालन आप करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे समय में आपको ये वचन याद देता है कि यदि हम अगर समझो ऐसा हो गया तो क्या है वचन? देखिए, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो अभी तक आप पाप में गिनती किए जाते हैं जब आप कसर छोड़ देते हैं, अपने अंदर ऐसी कोई अवस्थाएं रखते हैं जो आज्ञा पालन में आप उतरना नहीं चाहते हैं। ओके, तो अभी भी फिर आप क्या है? अधर्मियों में शामिल है। अधर्मियों में शामिल है तो आप यीशु मसीह के नहीं कहलाए जाएंगे। ओके, यीशु मसीह के कहलाए जाने के लिए संपूर्ण आज्ञा पालन होना ज़रूरी है। ओके, आधे अधूरे नहीं, आपको संपूर्ण आज्ञा पालन हो तभी यीशु मसीह के आगमन में आप उठा लिए जाएंगे। ओके, नहीं तो आप यही रह जाएंगे, और जब आप यही रह जाएंगे आधा अधूरा आज्ञा पालन लेते हुए, तो आपको आगे जाकर परमेश्वर का राज्य का बेनिफिट्स भी नहीं है। हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस भी नहीं रहेंगे आप।
ओके, तो फिर फायदा क्या हो गया? आपने पानी का बपतिस्मा लिया, फायदा क्या हो गया? आपने यीशु को अंगीकार किया, फायदा क्या हो गया? क्योंकि उसका सारा जड़ कहाँ मजबूत होना चाहिए? उसके बाद वाला जीवन में, यानी आज्ञा पालन के करते 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 वो जड़ में आप मजबूत रहते हैं। हालेलुया। तो ये तो सिर्फ आपने शुरुआत है आपकी, उसके बाद का जीवन आपका महत्व रखता है, क्या आप मसीह है या नहीं। आज्ञा पालन से आपकी परख होती है, क्या आप मसीह है या नहीं। हालेलुया। तो आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। पानी का बपतिस्मा लेकर आप बोल नहीं सकते हैं कि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, चलो मेरे साथ शादी कर लो, ओके, क्योंकि मैं मसीह हो गया हूँ। ऐसे नहीं चलता है। उसके बाद का समय इम्पोर्टेंट है, क्या आज्ञा पालन में हो या नहीं। ओके, आज्ञा पालन डिसाइड करता है वो इंसान हमारे लायक है कि नहीं है। ठीक है, आगे ऐसा है वचन, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर 5 वचन से आगे, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। तो हमारी परख और झूठे मसीहों की परख आज्ञा पालन के बेसिस के ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, 6 वचन, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। तो यहाँ पे कोई अफराद पर हेरा फेरी नहीं कर सकता है मसीह 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 कह के। ओके, नई आज्ञा 7 वचन से आगे, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। तो मैंने आपको इसके विषय में परख बता दिया। कौन से वचन में? पहले अध्याय के 7 वचन में। जो आज्ञा पालन का लेवल है आपका, वही आपका सहभागिता रहेगा। ओके, जब आपका आज्ञा पालन का लेवल के अनुसार आपके साथ संगति मसीह नहीं है, आप दूसरे मसीहों के साथ बैर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप मसीही नहीं है। आप वहाँ पर ज्योति की कमी है आपके अंदर, अंधकार आपके अंदर से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका आज्ञा पालन को जब आप देखेंगे तो आपके दोस्त भले ही समान आज्ञा पालन वाले लोग आपके दोस्त हैं, लेकिन जो आपके दोस्त नहीं बन पा रहे, जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके आज्ञा पालन का स्तर ऐसा है, लेकिन फिर भी वो आपको दोष नहीं देते हैं, फिर भी वो आपको परेशानी में नहीं डालते हैं, फिर भी वो काइन की तरह आपका हत्या नहीं कर देते हैं, फिर भी आपके विरोध जलन नहीं रखते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? उनके अंदर अंधकार नहीं है। तो चाहे आपके संगति में कोई रहे नहीं रहे, लेकिन आपका मन शुद्ध और पवित्रता से भरा हुआ है, जिस लेवल तक आप आज्ञा पालन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर ज्योति है। हालेलुया, ये पहचान है उसकी। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। वह उसको दोष नहीं लगाता है, वह उसको नफरत नहीं करता है। कोई बात नहीं, वो आपके आज्ञा पालन के लेवल में नहीं है, ऊंचे लेवल में है, तो भी वो उनसे आप प्रेम रखोगे। अगर आपसे कम लेवल में आज्ञा पालन है तो भी आप उनसे प्रेम रखोगे। इसका मतलब सच्चाई में आपके अंदर ज्योति में रह रहे हैं आप। ओके, और ठोकर नहीं खा सकते हैं आप। ओके, आपको कोई भी बात रोक नहीं सकती है विश्वास में आगे जाने के लिए। 11 वचन, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब मसीह में हैं, आपके आज्ञा पालन के स्तर के अनुसार आपको दोस्ती रहेगी।
सहभागिता रहेगी। ओके, लेकिन जो ज़्यादा आज्ञा पालन कर रहा है आपसे ज़्यादा, तो वो आपका दोस्त नहीं बनेगा। तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको जलन नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कड़वाहट नहीं आना चाहिए, और ना ही उसको आपके विरोध कुछ होना चाहिए। तब कहा जाएगा कि आपके अंदर अंधकार नहीं है। अगर आपको एक दूसरे में बैर है, आपको एक दूसरे का जलन है, या आपको उसके बारे में कुछ उसको नहीं है, आपको कुछ ऐसा परेशानी लगता है उसके बारे में, तो मेरे भाई मेरे बहन, अंधकार आपके ऊपर जीत रहा है। ओके, और आपकी आंखें आत्मिक तौर से प्राप्त नहीं कर पाएगी, वो अंधी हो चुकी है। ध्यान कीजिए इस बात का। ओके, 12 वचन, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। तो हमारे जीवन के हर एक अलग अलग लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, अलग अलग उनके विश्वास के स्तर रहते हैं मसीह के अंदर। सबके साथ हमारी नहीं बनती है, लेकिन उनसे ना बनने की वजह से उनके बारे में हमारे अंदर कोई भी गलत इरादे नहीं रहते, काइन के तरह झूठे मन नहीं रहते हमारे अंदर। ओके, तब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के चाल चलन को समझ सकते हैं। वो अलग अलग स्तर आप 12 वचन से इस 14 वचन तक आपने देखा, अलग अलग स्तर के विश्वास के ये आज्ञा पालन के दर्जे है, लेवल से वो आप देखते हैं किस प्रकार से वो उनको समझा रहा है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आप हमको पवित्र आत्मा के द्वारा फिट एंड फिक्स कीजिए, इन वचनों में हमें स्थिर कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।